अगर इरादे मजबूत हो तो खुदा खुद बंदे से पूछता है कि बता तेरी रजा क्या है। बिल्कुल अपने इरादों को ऐसे मजबूत कर पूरे कर्नाटक स्टेट का नाम रोशन करने वाली इंडियन इस्लामिक स्कूल की स्टूडेंट खुर्रतुल ऐन इफ्रा, जो कि महज एक 13 साल की उम्र में जिसने एक नावल लिखा है जिसका टाइटल है हंट डाउन द मेमोरी लेन। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। Hunt Down the Memory Lane. Why did you choose this title for novel? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So you see, Hunt Down the Memory Lane is quite relevant to the story. Okay. Actually, down the memory lane is an idiom used in the English language, which is referred to recalling memories from the past. And there's a writer inside the book who is recalling memories from her childhood, and she's narrating it. The hunt that she had in her childhood, she's recalling it and she's writing it down. So you see, hunt down the memory lane from the memories is quite relevant to the story. Ifra, what really inspired you to do this? There were many things that inspired me actually, because when I started writing this, it was the pandemic time and I had a lot of time at hand to myself. So then I exposed myself. I started reading a lot of books, and you see, after I read books, I got to know like books क्या होते हैं, stories क्या होते हैं, वो literature का एक world किस तरह होता है. So I got an idea of that. So you see, I can term that books are one of my inspirations. Okay. Is it your first work? No, not exactly. My first book was when I was 13, the Noodle section. It's not published yet, but I plan to go back to it once. It's again a story of the children's and all that adventures. But yes, I plan to go back to it and polish it, and inshallah, it will be my second publication. How did the school teachers, how really helped you to complete this novel? I have been in this school for the past 11 years, and whatever I know today, from holding a pen to writing a book, I have learned in this school. The teachers and the overall environment of the school has been the making of me. Like, I read books, I got to know about the story, that's all is okay, but the basic structure of my academics, of my learning, I've learned from this school. So I thank all of them. Ifra, tell me about your family. How did they help you? My family has been a really key factor for what I did, because you see, they are my parents, they are teachers, and quite naturally they are interested in books. As long as I remember, I always had that environment at home which by itself makes you to pick up something and read. Everybody at home, my mother, my father, everybody are interested in books, and even my father tries something at writing. He writes articles. So you see, when other children got toys and other things at a young age, they used to give me books. So they have been really encouraging when I made this decision to write a book, and all along giving me ideas and suggestions. Everybody has helped me. आपके स्कूल के जो क्लासमेट्स हैं, तो उन्होंने किस हद तक आपको मदद की? जब पहली बार आपकी बुक पब्लिश्ड हुई तो जाहिर सी बात है आपके क्लासमेट्स ने देखा होगा, तो कैसा लगा उनको, और आपने कैसा फेस किया जब पहली बार आपकी बुक पब्लिश्ड हुई? सी दे बहुत खुश थे सब, मतलब अब बुक लिखना एक उनके एनवायरनमेंट में सबके लिए एक बहुत नई चीज़ थी, एंड दे वेर लाइक चिल्ड्रन की स्टोरी है तो सब आइडियाज़ दे रहे थे, अरे ये डालो अच्छा लगेगा, एंड एवरीबडी वॉज एक्साइटेड. इवन आई वॉज रियली हैप्पी टू सी दैट दे वेर सो एनकरेजिंग. अच्छा इफ्रा, एक्चुअल ये जो नावल है, आपने जो स्टोरी लिखी है, तो इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे क्या लोगों तक क्या मैसेज जाता है?
काइंड ऑफ मॉरल ऑफ द स्टोरी, बिकॉज यू कैन से बहुत सारे मॉरल्स है इसमें से. इट्स अबाउट अ राइटर हु इज़ राइटिंग अ बुक एंड शी इज़ रियलाइजिंग दैट हर इनर सेल्फ इज़ व्हाट मैटर्स. अपने खुद पे बिलीव करके जब कोई काम करते हैं तो ही होता है. एंड वो भी एंड हंट के बारे में बोल रहे, जो बच्चे जा रहे ट्रेजर हंट, उन लोग ख़जाना ढूंढ रहे, तो उसमें भी हार्डवर्क, डेडिकेशन, उसके छोटे छोटे काइंड ऑफ मैसेजेस स्टोरी के बीच में दिए गए हैं. यानी यूँ कहिएगा कि जब कभी भी आप कोई चीज़ सोचते हो, यानी आप कोई ख्वाब देखते हो, तो यानी खुली आंखों से देखो तो एक कॉन्फिडेंट पैदा होता है कि भाई हाँ हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं. इफ्रा, और एक चीज़, आपने जो स्टोरी को एक बहुत सोच समझ के आपने एक स्टोरी बनाई है, इसको एक अल्फाजों में आपने इकट्ठा करके उसको लोगों तक आपने पहुंचाया, तो किस हद तक कठिन लगा आपको? कि कई बार ऐसा होता है कि भाई मैं ये बुक लिख रही हूँ तो कुछ डिस्टर्बेंस ज़्यादा सा होता है, कहीं समझ नहीं आता, लाइन नहीं मिलती. आपने इतना टफ वर्क इतनी कम उम्र में किया है, तो कहाँ कहाँ आपको दिक्कत हुई और किस ने आपको सपोर्ट किया इसमें? दिक्कत तो हुई, बहुत सारी हुई, क्योंकि आई स्टार्टेड राइटिंग बिकॉज आई एन्जॉयड. किसको पता था एडिटिंग होती है, प्रूफ रीडिंग होती है, एक लाइन को 10-10 बार पढ़ के उसको हर एक मिस्टेक निकालना होता है. सो एंड आई वॉज डूइंग ऑल दिस लास्ट मंथ व्हेन आई वॉज कम्प्लीटली मेस्ड अप इन माई स्टडीज़. सो येस, देयर वर टाइम्स व्हेन आई वॉज कम्प्लीटली फेड अप, लाइक आइडियाज़ ही नहीं होते, क्या लिखूँ, छोड़ो, ऐसा बहुत कुछ हो रहा था. But still my father, he was very encouraging. He used to ask me again and again, अरे वहाँ पे अटक गई थी स्टोरी, क्या करे आगे. And he was encouraging. He used to suggest different publishers, like यहाँ पे publish करेंगे, ऐसा करेंगे. He was very enthusiastic about it. And I think that अरे इतना इंटरेस्ट से कर रहे फादर. सो आई वॉज सपोर्ट रियली. लिखना तो मेरे लिए बहुत बचपन से ही था, मतलब बचपन से ही स्कूल में हूँ, बट फ्रॉम 4th या 4-5 साल की थी तब से ही मुझे लिखने में इंटरेस्ट था. इवन माई पेरेंट्स, उनको भी लिखना था, बट स्कूल एक्चुअली गेव मी द एनवायरनमेंट. लाइक वहाँ पे एक्टिविटीज़ होते थे, सेमिनार्स होते थे, जो बस राइटिंग को एक इंटरेस्ट को नहीं एज ए प्रोफेशन उन्होंने वहाँ पे देखने मुझे मिला. लाइक करियर भी बन सकता है मेरा राइटिंग बोल के मुझे आई गॉट दिस आइडिया दैट इवन राइटिंग कैन बी माई करियर एट स्कूल. इफ्रा, जब आपकी बुक पब्लिश्ड हुई तो क्या इम्पैक्ट पड़ा आपके स्कूल में टीचर्स के ऊपर? टीचर्स को आपने किस तरीके से फेस किया? ऑब्वियसली सब बहुत खुश थे. मतलब when I entered school, everybody was like, where is Qurrat? How did you write it? What is it about? Everybody was asking me, and they were like really supportive. They wanted to influence it to different people. They said that yes, go on and write, and what you'll be writing next, they asked me. And yes, they were really supporting each one of them. Even my English teachers, they had played a key role in making my literature and writing as my. So English teachers and others, everybody was encouraging and supportive. Ifra, Hunt Down the Memory Lane, यानी ये जो टाइटल है नावल का, तो इसमें इस नावल में ऐसी क्या ख़ास बात है? क्या होता है ना कि हर एक कहानी में एक कैरेक्टर होता है और एक लाइन होती है जो लोगों के जहन में बैठ जाती है, तो ऐसी आपकी नावल में ऐसी क्या ख़ास बात है? क्या कैरेक्टर इसमें ख़ास है या फिर कुछ लाइन इसमें बहुत ख़ास है? सी स्पेशलिटी वी कैन से दिस इज़ अबाउट अ राइटर जो बुक लिख रहे हैं और अपनी फर्स्ट बुक रिजेक्ट होने के बाद सेकेंड बुक पे ट्राई कर रहे हैं. उन्होंने शी इज़ रियली फोकस्ड एंड डेडिकेटेड दैट शी इज़ बिलीविंग इन हर सेल्फ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक इतना बड़ा मॉरल देने के बाद सेकेंड एज एपिलॉग एंड प्रोलॉग की एक डिफरेंट स्टोरी होने के बाद एज अ स्पेशलिटी इट्स गिविंग a story of children also, showing that 3 children से summer holidays में जाके treasure hunt कर रहे हैं and little fun like what it is like to be like 14-15 साल के बच्चे and they are going and getting a treasure. What all hardships they face and what are problems and what are little simple adventures they have in day-to-day life. इंटायर कम्युनिटी की जो लड़कियां हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि आप, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आपने बड़ी कम उम्र में इन सारे अल्फाजों को इकट्ठा कर एक किताब की शक्ल में उसको बनाया, तो ऐसे ही आपने जो मेहनत की है, क्या कहना चाहेंगे कि आपके जूनियर्स को और इंटायर कम्युनिटी के लड़कियों को? See, the first thing that had me going was books. Like when I came to know about books, I realized that there is something in books and all that. So in today's world, when internet and smartphones are everything, books, the value of books has decreased, but their importance has not decreased. जितने importance books पहले थे वो आज भी है, smartphones आने के बाद भी.
So if everybody, like even the from childhood itself, if everybody starts reading books, books will let them have wider view of thinking. So even if हाँ ठीक है, सबको राइटर बनना नहीं होता, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, बुक्स विल एनेबल देम टू हैव अ गुड पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर, मेंटली जो है स्ट्रांग हो जाते हैं. आप डॉक्टर बनो या साइंटिस्ट बनो, इट्स डिफरेंट थिंग. सो बुक्स विल लेट एवरीबडी have a really decent character, a commanded language. So I don't know about inspiration, but an advice I can give is try reading books, just simple story books. Read books and I'm sure they'll have So enough. what is your next project? क्या आप प्लान करने वाली है आने वाले में? क्या आप और एक ऐसी नावल लिखेगी? तो अगर आपका इरादा भी है कि आप आगे चलकर एक और नावल लिखें, तो किस टाइटल पे आप लिखना पसंद करें? See, मेरे पास अभी फिलहाल एक incomplete work है. I have one work that I need to complete first. I had done that. Story is more satisfactory than this one. So I wish I'd do that. And I have to learn a lot of things here. This is just my first step. So after I do a little more of learning, I guess I'll be writing another thing in just this way, like in adventures and kind of things. But still I don't want to limit myself कि सिर्फ स्टोरी बुक्स ही नहीं लिखना है, नॉवेल्स ही नहीं. अभी लिटरेचर फील्ड में बहुत कुछ है अभी, राइटिंग्स, आर्टिकल्स एंड ऑल दैट. सो आई विश दैट आफ्टर दैट नूडल सेक्शन I would do a little bit of, I'll give some time to educate myself a little bit more and I'll be writing something else. कहाँ देखना चाहेंगी अपने आप को आगे आप? In the future, yes, I will be seeing myself as a writer, obviously, and I would see myself a little more, learned about this field, and I guess I would be influencing more people than I am now, because what I did now is not an achievement. It's just a first towards my destination. So in the future, maybe I'll be influencing, or I'll have some people who would, take me as an inspiration. इफ्रा, खास करके इस उम्र में लड़कियों को खेल कूद से काफ़ी लगाव रहता है, लड़कियां क्या लड़के भी हो. कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं स्पोर्ट्स में या खेल कूद में भी थोड़ा बहुत ही मतलब दिलचस्पी लूँ? दिलचस्पी तो है, मतलब आई डू ट्राई टू फाइंड टाइम फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, आउटडोर एक्टिविटीज़. इवन माई फैमिली एंड एवरीबडी दे डोंट लेट मी कीप स्टडिंग ऑल द टाइम इन अ रूम. आउटडोर एक्टिविटीज़ भी इम्पॉर्टेंट है एंड आई डू फाइंड टाइम फॉर माई सेल्फ. आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इफ्रा को सपोर्ट करें आगे आने में, ताकि लोगों तक इनका मैसेज पहुंचे. अगर आप इफ्रा की लिखी हुई नावल को पढ़ना चाहते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं ताकि आपके बच्चे उससे कुछ सीखें और कुछ सीख हासिल करें, तो प्लीज़ अमेज़ॉन की साइट पर जाइए, जहां पे हंट डाउन द मेमोरी लेन वो नावल है, आप उसको अभी ऑर्डर कीजिए. और मुझे यकीन है कि आपके बच्चे और आप एक बार उस बुक को पढ़ेंगे तो आपके बच्चे भी काफ़ी इंस्पायर होंगे.